In this video, we'll discuss a new topic, that is stress adaptation model. So we'll start with the stress. The term stress is given by Segi, and according to him, stress is a non-specific response of the body to any kind of demand made upon it. बॉडी आपकी बॉडी के लिए जो नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है, अगर कोई भी डिमांड या कोई भी चीज़ है, कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कुछ भी डिमांड आई है, कुछ भी स्टिमुलाई आया है, तो उसका किस तरीके से आपका बॉडी नॉन स्पेसिफिकली रिस्पॉन्स करती है, दैट इज स्ट्रेस. And this definition is given by Sen in 1956. The other definition of stress is the arousal of mind and body in response to demands made upon them. So this is similar to the previous definition. In this also we are talking about demands made upon it. The stimuli is creating demand that body has to respond. So here we are also talking about arousal of mind. So arousal of mind and body so that it can respond to the demands or the stimuli from the external environment. That is stress. This definition is given by Schaeffer in 2000. Next we'll see what are the stressors. Stress are nothing but the factors which are causing stress, or the factors which are creating the demand for the body. So any person or situation that produces anxiety response is called stressor. So there are many stressors like the environmental stressors, which include noise, pollution, traffic, crowding, weather. Then physiological stressors include illness, injuries, hormonal fluctuations, inadequate sleep or nutrition. Social stressors include financial problems, work demands, social events, losing a loved one, etc. Then under the thought stressors, negative self-talk, कैटास्ट्रोफाइजिंग, परफेक्शनिज्म. नेगेटिव सेल्फ टॉक, अपने लिए जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो नेगेटिव होना, अपने बारे में नेगेटिव सोचना, या जो भी थॉट आती है उनको नेगेटिवली थिंक करना. देन कैटास्ट्रोफाइजिंग का मतलब है एक छोटी सी प्रॉब्लम में, छोटी सी चीज के ज्यादा बड़ा चढ़ा के सोचना, बड़ी प्रॉब्लम समझना. देन परफेक्शनिज्म इज हर एक काम में परफेक्शन को एक्सपेक्ट करना. सो दीज आर द स्ट्रेसर्स रिलेटेड टू कॉजिंग स्ट्रेस. So these are the stressors. Now we'll see models of stress. So these models assist nurses to identify stressor in a particular situation and to predict the individual's responses. There are mainly three models: stimulus-based model, response-based model, and transaction-based model. So we'll start with the stimulus-based model. Stimulus-based model is given by Holmes and Reyes in 1960. Or we can say it is also called a Holmes and Reyes model. Then, according to this model, stress is defined as a stimulus, a life event, or a set of circumstances that arouses physiological or psychological reactions that may increase the individual's vulnerability to illness. So, stress, according to this model, is any. We can talk about any stimulus, any life event, or we can take any stimulus, लाइफ इवेंट, सर्कमस्टेंसेस. सो वो स्टिमुलस जिसने आपके फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल रिएक्शन को बढ़ाया, वो लाइफ इवेंट, वो सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस. इन दिस स्टिमुलस बेस्ड मॉडल, होम्स एंड रायस डेवलप्ड सोशल रीएडजस्टमेंट रेटिंग स्केल. दिस स्केल इंक्लूड 43 लाइफ चेंजेस और इवेंट्स. These events are both positive और negative in nature. जो ये सोशल रीएडजस्टमेंट रेटिंग स्केल है, इसमें जो क्वेश्चंस या स्टेटमेंट्स डाले गए हैं वो 43 लाइफ इवेंट पे डिपेंडेंट है. आप ये समझ सकते हैं इसके अंदर 43 आइटम्स हैं. वो जो 43 लाइफ चेंजेस या इवेंट्स हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम कॉज, स्ट्रेस के कॉज या स्ट्रेसर की बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस हैं. तो कुछ पॉजिटिव भी हो सकते हैं जो पॉजिटिव इफेक्ट दे सकते हैं या पॉजिटिव होते हैं लाइफ में, कुछ नेगेटिव. तो उनको इसमें डाला गया है. दोनों चीजें इसमें है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. और लेकिन वो जितने भी लाइफ चेंजेस और इवेंट्स यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं वो स्ट्रेसफुल ही होंगे. पॉजिटिव भी हमारी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं. तो यहाँ पे जितने भी आइटम्स हैं वो सारे स्ट्रेस कॉज करते हैं, लेकिन वो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव. Social Readjustment Rating Scale or SRRS provide information regarding जनरल इंप्रेशन ऑफ द स्ट्रेसर्स इन पर्सन्स लाइफ. किसी पर्सन की लाइफ में जो स्ट्रेसर्स आते हैं उनका इंप्रेशन क्या है उसकी लाइफ में. अगर ये स्ट्रेसर्स एक्सपीरियंस पर्सन बार बार कर रहा है
तो इनका जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज होगा, उनके जो इफेक्ट है वो भी इंक्रीज होगा पर्सन की लाइफ में, और 1 to 2 years में पर्सन को फिजिकल या मेंटल इलनेस हो सकती है। ये चीज़ भी इसमें एक्सप्लेन की गई है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी पर्सन का स्कोर हाई है तो पर्सन ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम एक्सपीरियंस कर रहा हो। लो अगर किसी पर्सन का स्कोर लो है तो उसकी भी गारंटी नहीं है कि इंडिविजुअल को कोई मेंटल या फिजिकल प्रॉब्लम ना हो। अब ये जो बीच में गैप है इन दोनों के बीच में, जो आपका लेवल इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, उसके पीछे कॉज हो सकता है पर्सन किस तरीके से चीज़ों को परसीव करता है और कोप कैसे करता है अपने हर एक स्ट्रेस। सो this point, perception in coping plays an important role in determining the impact of stress on each individual. इससे यही जो दो फैक्टर है, यही जो फैक्टर आप किस तरीके से अपनी लाइफ के स्ट्रेस को परसीव करते हो, कैसे कोप करने की कोशिश करते हो, यही दो फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि वो स्ट्रेसर या वो जो स्ट्रेस है वो आपकी लाइफ में कितना इम्पैक्ट डालेगा, आपको कितनी फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम देगा। So this was all about stimulus based model. The other models we'll discuss in the next video. Thank you.